Hi everyone. Today we are having Renu Dahiya with us from Haryana, and maybe already we are missing you from Pune because now you have cleared the exam, right? Yeah. She has done her engineering from IIT Roorkee in metallurgy, and after that she has been working in the EPF office in Pune. That's why we came in contact, and now, as we all know, she has cleared UPSC. So, from all of us, first, congratulations on your grand success. Thank you And so much. Thank you. yeah, well, first question I want to ask you, Renu, is what a girl from IIT is doing in the civil services now? So it was actually always a childhood dream for me to work for the government. I never saw myself as working for private sector or working behind a computer. I never saw myself doing that. So it was always uh, something that I wanted to do. I always wanted to work for the government, and I have been working for the government since almost last 3 years now. So moving into this new role, I'll have a more better perspective, I guess. Having been already worked in government, I'll take this experience onto this new responsibility that I will be having. So engineering was like it was just a means for me to appear for UPSC only. So it was never a career path that I wanted to choose for myself. I would like to explore this a bit. That you said that engineering is a means to prepare Hmm. for UPSC. And Yeah, yeah. maybe my next question is linked with that only. That what the girl from Haryana was doing in Pune for a few years. Uh, so actually, after my graduation, I did not appear for the campus placements because I was very clear in my head that I wanted to appear for civil services only. And my brother was like, "Why waste your energy on something that you do not want to do? If you are going to work for a private company or an MNC for 2 3 years, and then you're going to appear for UPSC anyways, then why waste those 2 3 years?" Okay. So I never appeared for my campus placements, but after appearing for UPSC for like 2 3 attempts, I this doubt started getting into my mind that it may never happen because you can put all your effort, or you can put all of your uh, hard work into it, but still it's like only those 800 something people who are going to be in that list. Yeah. There, for 800 people that are being selected, almost 2200 people have been rejected at that third stage. So Yeah. this may never happen. It gets into your mind that it may never happen. So that Mm. was the reason I decided to join this job that came my way. I was already preparing for UPSC, and the syllabus was very similar. The syllabus that was coming for my the job that I am currently in for that entrance exam, the syllabus was quite similar. So it was easy for me to appear for that exam, and I took it as a like a to for lack of a better word, it was more like a runway for me Maybe where to I get yourself to get a confidence कि ये हो सकता है एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं like that. हाँ सर होता है कभी कभी। मुझे एक तो ना मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कॉलेज से निकली थी आई वाज जिसको आइडियलिस्टिक वो है कि अच्छा नहीं यूपी जब आप सिविल सर्विसेज में जाते हो या आप जब सरकारी नौकरी में जाते हो आप दुनिया बदल देते हो। Mm. तो मेरे को वो आइडियलिज्म था कहीं ना कहीं और दैट वाज डेट्रीमेंटल टू मी। वो आइडियलिज्म नहीं चलेगा, वो आपके पेपर में दिख जाएगा, वो मेंस में दिख जाएगा। वो आइडियलिज्म प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि कोई दुनिया नहीं बदल सकता। तो मेरे लिए वो आइडियलिज्म को थोड़ा टोन डाउन करना, थोड़ा कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। वो मैंने इस जॉब से सीखा है सर 3 साल में। दुनिया नहीं बदल रहा है, कोई दुनिया नहीं बदल पाएगा। ऑल यू कैन डू, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज आप अपना काम कर सकते हो। सिर्फ आपके ऊपर बहुत सारे टीयर्स है, आपके नीचे बहुत सारे टीयर्स है। हो सकता है कि आपका काम वुड मीन नथिंग, बट द बेस्ट एफर्ट दैट यू कैन डू इज जस्ट डू योर जॉब वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी अच्छे से ढंग से करना है बस अपना काम। उतना कर लो बहुत है। ये डीप भी हो गया और क्लियर भी हो गया. Frankly speaking. You must have faced challenges at two levels.
I think all aspirants face challenges which are sort of common to everyone. And there might be some specific challenges you must have faced because you have always been working, right, when you are preparing for UPSC. So maybe let's talk more about that. What are the problems you faced during your preparation because of your work? So वर्क के कारण बहुत you have to एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद तुमने वो कैसे टैकल किया वो भी एनलाइटनिंग होगा सुनना. So you have to when if you're going from not working and then going to working appearing for UPSC, तो आपका स्ट्रैटेजी पूरा चेंज करना पड़ेगा because you cannot keep up with newspaper. You cannot आप 2-3 घंटा नहीं लगा सकते हो हिंदू पढ़ने में, वो आपका नहीं हो पाएगा. The time that you had, that luxury of time that you had earlier when you were not working, वो नहीं हो पाएगा. So you have to rely more on these current affairs की जो booklets आती है, जो concise होता है, महीने का पूरा आ गया है. So you have to rely more on that. तो इस तरह से changes आपको लाने पड़ेंगे. Time management बहुत अच्छे सीखना पड़ेगा. Maybe we will take it one by one. Say, let's for example, at any point of time, whether you feel that because of your work or work is the biggest hurdle in your success, because of the job I am not able to concentrate fully on the studies. ऐसा कुछ लगा ऐसा कभी? So ebbs and flows होते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि there are some days which are very good. आप बहुत अच्छे से concentrate कर पाओगे, but then there are other days something or other will come up in office which will demand your attention more than usual. या कुछ कलीग से कोई वो हो गया, कोई मतभेद हो गया, आपके क्लर्क से कोई मतभेद हो गया. So this will eat up your mind some days. So वो भी होता है. और कभी कभी you will feel like the world is conspiring against you कि एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम के बाद तीसरी प्रॉब्लम आती जा रही है. तो उस मोमेंट में पॉजिटिव रहना और उसके साथ पढ़ाई करना, दैट इज वन ऑफ द थिंग कि जो मुझे लगता है कि यूनिवर्सल होगा सबके लिए. मतलब जैसे मेरे जॉब का थोड़ा अलग होगा, इट इज नॉट यूनिवर्सल कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सबके एक्सपीरियंसेस रहे, बट आई थिंक ये एक यूनिवर्सल फीलिंग होगी सबकी कि देयर आर डेज when you feel like the world is conspiring against you, कि आपको पढ़ने का ही समय नहीं मिल रहा है, आपको मेंटली डिस्टर्ब हुए जा रहे हो. तो वो एक यूनिवर्सल फीलिंग होगी. उसके बावजूद आपको पढ़ते रहना है. मतलब यू हैव टू कीप योर प्रायोरिटी की नहीं, मतलब जैसे मेरा जॉब है 9 to 5 वैसे ही मेरी पढ़ाई है 9 से पहले 5 के बाद. तो वो आपको वो नहीं छोड़ना है, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो. अच्छे दिनों थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, बुरे दिनों 1-2 घंटा कम पढ़ लो, बस उतना ही डिफरेंस होएगा. बट वो आई थिंक वर्क के साथ थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा. यू हैव टू बी काइंड टू योरसेल्फ. देयर आर गोइंग टू बी डेज व्हिच आर डिफिकल्ट. उसमें यू डोंट बीट अप योरसेल्फ क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सिर्फ अपने आप को बीट अप करके. तो यू डोंट बीट अप योरसेल्फ फॉर दैट. तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है वर्क के साथ. वो ये तो आई थिंक थोड़ी यूनिवर्सल फीलिंग होगी सबके लिए जो भी वर्क कर रहा होगा. तो फिर पॉजिटिविटी, मतलब द वे यू आर सेइंग, राइट, ये जितना तो आसान तरीके से बता रही है उतना आई एम डैम श्योर कि इट मस्ट नॉट हैव बीन दैट इजी, राइट, पॉजिटिविटी. तो हां, सो can you share that experience? Exactly what you used to do, whether you used to think something, watch, read or anything to maintain this, or talk with somebody to maintain this positivity? सर एक तो बहुत जरूरी है कि दैट यू कीप योरसेल्फ सराउंडेड विद पीपल जो कि आपके एक्सपीरियंसेस को समझ पा रहे हैं, जो ऑलरेडी यूपीएससी अपीयर कर रहे हैं. क्योंकि प्राइवेट अगर सेक्टर में आपको कोई फ्रेंड काम कर रहे हैं वो सुन लेंगे बट दे विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू इट. तो आपको ऐसे एटलीस्ट 1 या 2 ऐसे कॉन्फिडेंट्स रखो अपने लाइफ में जो कि आपको समझते हो कि आपके एक्सपीरियंस को शेयर कर पा रहे क्योंकि दे हैव लिव्ड दैट सेम एक्सपीरियंस. तो वो समझेंगे भी. और वो पॉजिटिविटी, मैं तो पर्सनली उसी से पॉजिटिविटी डिराइव करती दैट आई हैव 2-3 फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे जितने ही फेलियर्स देखे हैं इस एग्जाम में, तो वी कुड रिलेट मोर टू इट. और दूसरा ये कि इट्स जस्ट अबाउट परसिस्टेंस आई गेस, कि आपको वो अर्जुन की आंख, वो आंख, मछली की आंख वाली बात है कि आपको वो देखते रहना कि अच्छा व्हाट एम आई एमिंग फॉर. और ये सब चीजें मेरा पर्सनली ऐसा है कि ना आई हैव अ वेरी गुड इमेजिनेशन. तो मैं ये चीज बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाती हूँ कि अच्छा 1 साल बाद मैं क्या हो सकती हूँ. तो आई कीप इमेजिनिंग दैट. और जो प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है वो फिर फेड अवे होती जाती है कि नहीं 5 months down the line, 1 year down the line, 5 years down the line, this will be nothing. जिससे मैं इतना ज्यादा प्रेड कर रही हूँ, मैं इतना ज्यादा परेशान हो रही हूँ जिस चीज से, it will be nothing in 5 years.
तो दैट इज व्हाट कीप्स मी पॉजिटिव। और उसके अलावा आई थिंक हॉबीज रखना भी बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ आप अपने उससे भी अलग करो, जॉब से अलग करो, पढ़ाई से भी अलग करो, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी जब आप इन दोनों चीजों में ही लिफ्ट कर लोगे कि अच्छा मेरी जॉब ही मेरी आइडेंटिटी है या मेरा यूपीएससी एस्पिरेंट होना ही मेरी आइडेंटिटी है, व्हेन यू गेट रैप्ड अप इन इट सो मच, तो वो दोनों चीजें जब आपको बिखरती हुई दिखेंगी ना, तो फिर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस आएगा, यू विल बी लाइक अच्छा अब क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इन दो चीजों के बिना। तो बहुत सारे फ्रंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए मतलब है, मतलब पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑप्शन हियर। You have just mentioned that you have to keep surrounded by the people who are also preparing for UPSC so that they will understand how exactly you are feeling, right? But I think this might be a challenge as well. The people who are preparing full time generally वो class में बैठते हैं या studies में बैठते हैं, और otherwise they will in hostel room में भी सभी UPSC करते रहते हैं. So for a working professional, मतलब that was a challenge, or that was, you feel that उससे कुछ problem होता है या? सब मेरे जो एक्चुअली मेरे जो कलीग्स थे ऑफिस में मेरी एज ग्रुप के, फॉर ऑल प्रिपेयरिंग, तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर प्लीज पार्डन। That would have a big plus then in your case. या क्योंकि नोट शेयर कर पाते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाते हैं, और वर्कलोड डिवाइड कर सकते हैं कि अच्छा आज मैं थोड़ा कम काम कर लेता हूँ, तू कम थोड़ा ज्यादा काम कर ले, आई विल कंपनसेट फॉर यू टुमारो। या किसी को छुट्टी लेनी है कि यार मेरे को प्री के लिए छुट्टी लेनी है, ठीक है जाओ, आई विल मैनेज योर वर्क बिहाइंड यू। तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि वी वर एबल टू कोलैबोरेट मोर, तो वो काफी हेल्पफुल रहा। अदर देन द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट कि हम शेयर कर पाते थे, लॉजिस्टिकली भी बहुत हेल्प हो जाती थी उससे मेरे को। तो पर्सनली मेरे वाले केस में इट वाज नेवर डेट्रीमेंटल टू मी, बट इफ यू आर वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट, ऐसे ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहाँ आपके अलावा कोई और प्रिपेयर नहीं कर रहा है, तो आई थिंक वहां थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली किस तरह की प्रॉब्लम, बट आई थिंक प्रॉब्लमेटिक होगा इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ आपके अलावा कोई और प्रिपेयर नहीं कर रहे। ओके, how much time on an average but you still used to get on a daily basis या on the weekends, and तो effectively कैसे use करती थी, मतलब whether you are having any tips, experiences, any thoughts about it? So actually I've always been a morning person, तो मेरे लिए 4 बजे उठना, 4:15 उठना is very normal। तो मेरे को उस कारण से ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स का सुबह का मिल जाता था, विच इज अनडिस्टर्ब्ड। कोई आपसे फोन पे बात नहीं करेगा उस समय, कोई आपको व्हाट्सएप नहीं करेगा, नोबडी इज डिस्टर्बिंग यू, योर पेरेंट्स आर नॉट अवेक येट। तो वो 3-4 मेरे को घंटे जाते थे फॉर डेडिकेटेड स्टडी। तो उस टाइम में पूरा अपना एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैं निपटा लेती थी। मुझे कि आज जो मेरे को है कि आई नीड टू कवर दिस पोर्शन, तो मैं पहले ही कर दूंगी। whatever time I get in the day after that, वो मेरे लिए बोनस हो जाता था फिर कि अच्छा मैं अगर if the workload is less तो अपनी डेस्क पे बैठ के पढ़ लिया, अगर शाम में थके नहीं है ज्यादा तो 2-3 घंटा शाम में निकाल लिया। तो उस तरह से मैं मैनेज कर पाती थी। ऑन एन एवरेज 5 to 6 आवर्स मेरे को मिल जाते थे वाइल वर्किंग, और वीकेंड्स पे फिर और ज्यादा कवर कर पाते थे। वीकेंड्स पे जैसे मॉक्स कर लिए बहुत डेडिकेटेडली और रिविजन कर लिया। वीकेंड्स वाज लार्जली रिजर्व टू मी फॉर रिविजन की जो भी पढ़ा है पूरे वीक में, क्योंकि हो सकता है कि उतना कुछ पोर्शन है जो मैं उतना ज्यादा फोकस से नहीं पढ़ पाई उस समय, तो वो रिवीजन करते हुए फिर मैं एक बार दोबारा देख लूंगी। तो वो वीकेंड्स पे थोड़ा फोकस ज्यादा हो जाता था कि वीकेंड्स पे 8-9-10 घंटे पढ़ लिया, और वीकडेज पे जब आप वर्क कर रहे हो उसके साथ जितना टाइम मिला वो उतना पढ़ लिया। But still, whether you are having that sort of nagging feeling at any point of time that look, जो बच्चे full time prepare कर रहे हैं वो तो maybe they must be slogging out 10-12 hours a day, and I'm having only say 6 hours max on any day. So whether that thought is disturbing? Sir, not exactly, because मैंने दोनों तरीके से करा है, बिना जॉब के भी पढ़ के देखा है, मैंने जॉब के साथ भी पढ़ के देखा। I have been more productive with job। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस मैंने खुद से कंपेयर किया, मैंने किसी और से नहीं कंपेयर किया कभी भी। देयर आर पीपल आई नो दैट हु हैव बीन वर्क, वो जो ग्रेजुएशन के बाद से आज भी प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड दे स्टिल टू अपीयर फॉर देयर फर्स्ट इंटरव्यूज, जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आई नो पीपल जो कि वर्क
working for like MNCs, बड़ी MNCs, working beyond their 9 to 5 job, उसके बावजूद भी निकाल रहे हैं. So मतलब कंपेयर करने से कुछ होगा नहीं, you're just wasting your energy if you're comparing it like that. क्योंकि आपको, this is something that I've always believed कि आपको अपनी एक सीट के लिए लड़ रहे हो. आपको बाकी 800 से मतलब नहीं है, वो आप अपनी एक सीट के लिए लड़ रहे हो. So you have to fight for that. तो और you always have to compare yourself कि मैंने कल क्या किया था, मैंने पिछले टाइम में क्या किया था, मैं उससे बेटर कैसे कर रही हूँ. So you always have to fight for that, क्योंकि compare करने लगोगे तो there are like 3.5 lakh people appearing for this exam. किससे compare करेंगे? So you're just wasting your energy when you're constantly comparing yourself with other people like that. I think somehow I'm feeling that this might be the greatest advice that you can share with anybody, right? That don't compare yourself with the rest of them. Like you just compare yourself कि मैं कल क्या कर रही थी और मैं आज क्या कर रही हूँ. If I'm improving on that, then I think that is what it's all about. Okay. But now still doing the job and continuously studying, तो ये बहुत ज्यादा mental exhaustion नहीं कभी set in आता, because बाकी लोग थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं बीच बीच में, but because you always have the paucity of time, so you are either you are doing a job or you are preparing for UPSC. तो mental exhaustion था कभी? सर हो जाता है, काफी बार होता है, बट मैंने हमेशा 2 टाइप से ब्रेक देखा हमेशा, कि एक शॉर्ट टर्म में ब्रेक लेना है, एक लॉन्ग टर्म में ब्रेक लेना है. तो शॉर्ट टर्म में ब्रेक मेरा क्या होता था कि जैसे 10-15 दिन बहुत डेडिकेटेडली फोकस तरीके से पढ़ लिए, तो एक दिन थोड़ा सा चिल ले लेंगे कि ठीक है आज नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा लाइट रीडिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, या एक मॉक लगा लेते हैं. एंड दूसरा मैं लॉन्ग टर्म में ब्रेक देखती थी. आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि मैं प्री के बाद और मेंस के बाद कहीं ना कहीं पूरा अपनी एक बार के लिए लोकेशन चेंज करूं, कि कहीं और घूमने चले गए, या पुणे में हूँ तो दिल्ली आ गई या घर आ गई. तो वो ब्रेक नॉट जस्ट फ्रॉम स्टडीज, बट यू हैव टू समटाइम्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट रूम ऑल्सो, बिकॉज एक पॉइंट के बाद आपको उस रूम से भी इतना यूज हो जाओगे दैट यू कहाँ पे डिस्टेम्पर हटा हुआ है वो भी याद जाता है आपको, बिकॉज यू आर सो, आप अपने ही दिमाग में हो, अपने ही किताबों के साथ हो, उसी एक कमरे में हो. तो वो फिजिकली ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है फ्रॉम ऑल दैट, कि प्री के बाद और मेंस के बाद यू फिजिकली डिसलोकेट योरसेल्फ फ्रॉम दोस बुक्स, की एक बार के लिए हटते हैं, रिजुवेनेट होते हैं, वापस आते हैं. मैंने बहुत लोगों को देखा that they feel apologetic and guilty about taking that break. That also happens with number of people, yeah. नहीं, वो बहुत गलत अप्रोच है सर मेरे हिसाब से, because you are just torturing yourself. क्योंकि ये कोई I think of it as a marathon of sprint. जब sprint दौड़ते हो, you don't take a break. But जब आप marathon दौड़ रहे हो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, there are going to be moments when you're going to be walking. आप कंटिन्यूअसली 30-40 किलोमीटर नहीं दौड़ोगे ना. तो देयर आर गोइंग टू बी मोमेंट्स जब आप रुकोगे, पानी पियोगे, खाना खाओगे, कुछ करोगे. तो आई थिंक ऑफ इट इन दैट वे कि आपको रुकना पड़ेगा, बिकॉज 1 साल तक लगातार डेली वही चीज पढ़ना, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. ह्यूमनली पॉसिबल है. तो वो गिल्टी होगी, आप जस्ट टॉर्चरिंग योरसेल्फ. आप अपना आगे आने वाला जो प्रोडक्टिव, आप वो 6-7 दिन जो ब्रेक लेके आगे प्रोडक्टिवली पढ़ सकते थे, वो आप उसको भी जेपरडाइज कर रहे हो जब आप गिल्ट ट्रिप पे जा रहे हो कि नहीं, मतलब नहीं मेरे को तो पढ़ना है, नहीं मेरे को तो पढ़ना है. You're not helping yourself by doing that. But maybe I think that not to get that guilt feeling, you should be putting a lot of effort when you are actually working, right? मतलब मेरे ख्याल से जो बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई डेली रूटीन में नहीं करते, वो ज्यादा गिल्टी हो जाते हैं ब्रेक लेने के बाद. In your case, maybe you are managing your routine properly and with dedicatedly. That's why maybe you might not be feeling that guilty. ये भी हो सकता है. हाँ, सही बात है. और सर मेरे को एक्चुअली ऐसा लगता है कि when we are just beginning this journey, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हेरमेटिक से हो जाते हैं हम लोग, कि अच्छा नहीं, मैं कुछ अच्छा नहीं खाऊंगा, मैं कुछ अच्छा नहीं पहनूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं फोन छोड़ दूंगा, मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा. मतलब you don't have to torture yourself. मतलब लाइफ भी साथ में चलानी है, because as fatalist as it sounds, it is possible it will never happen for you. क्योंकि वो 7 तो बच्चे ही होने हैं. There is going. I have seen more failures than successes in this exam. मैंने अपने आसपास भी ज्यादा failures देखे सक्सेस से. But this is not the end all, कि ये नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म है या कुछ और कराएगी. So you're not helping yourself by doing that. कि
कि एकदम मतलब ऐसे साधु संत बन जा रहे हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मजे नहीं करेंगे, हम कुछ भी इंजॉय नहीं करेंगे। तो वो आप अपनी एनर्जी उस चीज में इतना ज्यादा वेस्ट कर दोगे कि आप फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। 10 घंटे आप कुड़ करके और मतलब परेशान होके पढ़ो, उससे बेटर है 2 घंटे बहुत डेडिकेटेडली पढ़ लो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मोर। तो मतलब ये दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल माय यंगर सेल्फ आल्सो कि यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ बाय बीइंग दिस साधु संत की नहीं मैं नए कपड़े ही नहीं खरीदूंगी, मैं तो बाहर ही नहीं जाऊंगी, मैं तो फ्रेंड से ही नहीं मिलूंगी। यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ, यू हैव टू लिव योर लाइफ एज वेल। मतलब और हम बहुत प्राइम एज में है, मतलब वी आर ऑल इन आवर 20s जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वी आर टेक्निकली वेस्टिंग एंड गिविंग अवे आवर यूथ टू दिस एग्जाम। तो और अगर नहीं होता है, विच इज गोइंग टू बी केस फॉर मेनी पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ, समय पहले तक मेरे लिए भी था कि हो सकता था कि मेरा भी नहीं होता। तो व्हेन आई हिट माय 30s आई रिग्रेट दिस, यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने प्रिपरेशन के अलावा मैंने तो कुछ भी नहीं किया लाइफ में। तो वो गिल्ट भी नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, यूपीएससी की लाइफ बहुत है। But whether there was a frustration at any point of time about, like you are saying that life is moving ahead, right? मतलब ये जो friends होते हैं, say for example IIT के तुम्हारे जो friends हो गए, some people would have got based in the US, अच्छी कार खरीद रहे हैं, शादी हो रही है, मतलब उनकी लाइफ आगे चल रही है, and we are sort of stuck in a limbo, हम वही है। तो ऐसा कभी फील होता है? तो कभी कभी होता है, हाँ मतलब because you are cleared now. नहीं मतलब ये तो सर ये वाला एक्सपीरियंस जो क्लियर होने वाला एक्सपीरियंस तो मेरा कुछ महीने का ही है ना, फेलियर वाला एक्सपीरियंस इज मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस, तो मैं उससे ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ टेक्निकली। मतलब इन माय हेड आई एम स्टिल एन एस्पिरेंट, इन माय हेड आई एम स्टिल अ फेलियर, जिसका अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा लंबा समय था, ये छोटा समय रहा है। पर उस टाइम के हिसाब से बताऊं तो सर कभी कभी होता है, बट मेरा एक्चुअली मैंने बहुत इंटेंशनली इस चीज में एंटर किया था। मेरा माय ब्रदर इज एन IIT प्लस IIM ग्रेजुएट, माय सिस्टर इन लॉ इज एन IIT मद्रास ग्रेजुएट। तो मेरे को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है अपने बारे में सॉरी फील करने के लिए, मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं मुझे सॉरी फील कराने के लिए। तो मतलब मेरा ऐसा था कि आई हैव टू बी वेरी इंटेंशनल अबाउट इट कि मैं ये क्यों कर रही हूँ और क्या मैं ये कॉस्ट देने को तैयार हूँ। एम आई विलिंग टू गिव माई 5-6 years टू दिस थिंग। आई ऑलवेज सी इट एज 5-6 years वर्सेज द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई कुड बी वर्किंग लाइक दोज पीपल जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आई कुड बी वर्किंग लाइक देम, बट मैं वो काम नहीं कर रही होंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मतलब by giving my 5-6 years I could be working a job that I want to do for 30-40 years. So for me it was always about cost benefit analysis like that. तो उस चीज के कारण मुझे कभी कंपेयर करने का किसी को मन नहीं हुआ। और this is something हम अपने फ्रेंड सर्कल में कहते हैं शादी करना बहुत आसान है। तो उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शादी करना ही सबसे इजी काम। कुछ अपनी पहचान बनाना वो मुश्किल काम होता है। तो people प्रेशर फ्रॉम द फैमिली कि अभी बस हुआ ऐसा कुछ? सर एक्चुअली एज मेरे फेवर में है अभी तक, तो आई एम 27 years, तो उतना प्रेशर नहीं था। बीच में आता है, बीच में फ्लेयर अप होता है पेरेंट्स का भी, बिकॉज दे आर आल्सो सोशल बीइंग। वो किसी से मिल रहे हैं, वो सुन रहे हैं कि अच्छा कि रेनू से 2 साल छोटी लड़की थी, उसकी शादी भी हो गई, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है उनके माइंड में। बट यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग देम कि यू आर एमिंग फॉर समथिंग बिगर, कि आप मेडियोक्रिटी नहीं चाह रहे हो अपनी लाइफ से, आप कुछ बिगर चाह रहे हो अपनी लाइफ से। तो यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग दैट टू देम कि थोड़ा रुक जाओ। तो वो प्रेशर आता था, अभी भी आता है कि बस करो, हो गया। तो बट प्रायोरिटीज आई थिंक बहुत क्लियरली समझानी पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो और आप क्यों कर रहे हो। और गर्ल्स के केस आई थिंक थोड़ा डिफरेंट प्रेशर आता है, लड़कों पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रेशर आता है, लड़कियों पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रेशर आता है, बट स्टिल प्रेशर नॉनदलेस। ओके, let me more a bit technical now. Obviously, because you are having less time on a daily basis,
Was it is it important to choose the right sources? मतलब कुछ कि आपके पास टाइम कम है तो जो पढ़ना है वो ठीक तरीके से ही पढ़ना है, ठीक सोर्सेज से ही पढ़ना है, तो सोर्सेज चूज करते वक्त whether you are having any strategy? सर जब मैं जॉब नहीं करती थी तो मैं बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ती थी कि बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ लिया कि बुक्स भी उठा ली किसी चीज के बारे में, किसी स्पेशलाइज्ड ऑथर की कोई स्पेशलाइज्ड बुक भी उठा ली, आईआर पढ़ रहे हैं तो किसी की प्रताप भानु की किताब उठा ली, वो मैं कर लेती थी पहले, बट वो यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम एनी मोर व्हेन यू आर वर्किंग, सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम लाइक अदर पीपल जो 16-17 घंटे पढ़ सकते हैं, अब आपके पास वो टाइम वो नहीं है क्योंकि आपको अपना जॉब भी ढंग से करना है, यू हैव टू बी जुडिशियस टू योर जॉब ऑल्सो क्योंकि वो आपको छत प्रोवाइड कर रहा है, इट्स पुटिंग फूड ऑन योर टेबल, यू कैन नॉट बी, आप उसके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते अपने काम के साथ, यू हैव टू बी डिलिजेंट अबाउट दैट ऑल्सो। तो सोर्सेज डेफिनेटली मेरे सोर्सेज बहुत ज्यादा चेंज हुए, मैं पहले कभी करंट अफेयर्स की बुकलेट्स वगैरह नहीं उठाते थे बिकॉज आई वाज वेरी कंसिस्टेंट विद माय न्यूज़पेपर रीडिंग, तो वो मेरा चेंज हुआ कि मैं करंट अफेयर्स की बुकलेट्स वगैरह उठानी शुरू की। उसके अलावा आई स्टार्टेड रिलाइंग मोर ऑन माय नोट्स कि मैंने जो एक बार नोट्स बना लिए मैं उन पे रिलाई करना शुरू कर दी, रिवाइज भी करना है तो कुछ नया कुछ नहीं उठाएंगे। और मैं ये हो एक और चीज जो मेरी हो चुकी थी जॉब के बाद कि मैं फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे आ गई थी बहुत ज्यादा कि शुड आई फोकस ऑन समथिंग जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा और उस पे मैं 4 घंटे लगा दूं वर्सेस मैं ऐसा कुछ पढ़ लूं जिससे मुझे पता है कि जिसमें से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कई बार हम लोग एक्चुअली ये फिक्सेट करने लग जाते कि अच्छा क्या छूट गया तो बहुत ज्यादा फिक्सेट करने लग जाते। मैंने ये अपने जितने बहुत सारे एस्पिरेंट से बात की है, दे गेट फिक्सेटेड ऑन दिस थिंग कि अच्छा मैंने तो ये नहीं पढ़ा, बच्चे तो ये पढ़ रहे हैं। इट्स एन एंडलेस सिलेबस, आप कभी भी कवर नहीं कर सकते हो, तो यू हैव टू बी वेरी डिलिजेंट अबाउट कि हर एक, वैसे भी देखा जाए तो सर 50-51% से एक्स्ट्रा मार्क्स किसी के भी नहीं आ रहे हैं कहीं भी, इवन द टॉपर्स आर गेटिंग 51% मार्क्स, तो पूरा तो वो भी नहीं करके जा रहे हैं ना, मतलब डिस्टर्ब योर बिट, जो माइक जो है ना आई थिंक तुम्हारे हाथ में है तो थोड़ा हिल रहा है। हाँ या नाउ इट इज क्लियर या हाँ। तो उस पे फिक्सेट नहीं करना है सबसे पहले तो कि क्या छूट गया है, तो वो कि अपना जो आपने रिसोर्सेज बना लिए हैं उसी को 10 बार पढ़ लो, वो बेटर है rather देन कि आप इस चीज पे फिक्सेट करो कि अच्छा मेरा ये सोर्स रह गया, मेरा ये रह गया। एंड अगेन बी स्टिक टू योर बेसिक्स एज वेल कि अच्छा मेरी एनसीईआरटी पूरी होनी चाहिए, मेरी जीसी लॉन्ग पूरी होनी चाहिए, मेरी स्पेक्ट्रम पूरी होनी चाहिए, मेरे करंट अफेयर्स अप टू डेट होने चाहिए, मेरे मैप्स वगैरह अप टू डेट होने चाहिए। तो वो जो बेसिक्स है वही, क्योंकि 60-70% पेपर तो उसी में से आना है, तो वो भी आपने कवर नहीं किया अगर ढंग से तो बाकी का 40% कवर करके भी कुछ नहीं उखाड़ लोगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर बेसिक्स। वो अगर आपने बेसिक्स कर लिए हैं तो उसके बाद फिर यू कैन, इफ यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम तो आप उस पे ऊपर बिल्ड अप ऑन कर सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट व्हेन यू आर वर्किंग कि आपको अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने हैं और उन्हीं पे फोकस करना है बार बार। You have mentioned about creating your own notes and referring that, right? You said that you rely a lot on that. तो उसमें कैसा तुमने टेक्निक इवॉल्व किया था नोट मेकिंग का, क्योंकि फिर से फॉर नंबर ऑफ पीपल इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सर एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि ना हाथ में मेमोरी होती है। व्हेन यू राइट समथिंग, एक बार आपने लिख दिया है तो वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं बैठ जाता है, rather than जस्ट आप उसको सामने से नजर से घुमा रहे हो। तो अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो ना तो एक बार उस चीज को एक बार पेन से लिख दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में चला जाता है। तो इवन इफ यू नॉट एबल टू रीड दोज नोट्स अगेन, तब भी एक बार बना लो और उसमें कोई सो नोबडी एल्स इज सीइंग योर नोट्स, तो ब्यूटीफाई करने के लिए मैं दिखाती हूँ मेरे नोट्स कैसे दिखते हैं। मेरे नोट्स ऐसे दिखते हैं, इतने गंदे दिखते हैं मेरे नोट्स। मतलब मैं कुछ भी लिखती हूँ, मेरे नोट्स को मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। तो और कुछ लोग मैंने देखा है 10 तरह के पेन्स यूज करेंगे, नोबडी इज सीइंग योर नोट्स। आपको लेजिबल होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो वो है कि यू हैव टू मेक नोट्स फॉर योरसेल्फ, चाहे वो 1 कॉपी बना लो चाहे 10 कॉपी बना लो, बट अपनी नीड के हिसाब से बनाना है, यू आर नॉट शोइंग इट टू एनीवन। तो वो बहुत जरूरी है कि
अपना फिगर आउट करो व्हाट यू वांट टू रिवाइज एट द लास्ट मोमेंट और लास्ट वीक, उसके हिसाब से नोट्स बनाओ और मतलब नोट्स अपनी अपनी कस्टमाइज करो अपने हिसाब से. There is another saying as well. If you want to clear UPSC, you have to exhaustively practice writing, maybe on a daily basis, etc. So, is it possible really for you when you are working to write that exhaustively? तो मेरे लिए इट वाज अ ब्लेसिंग कि मेरे को ईओएल मिल जाती थी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने मेन से पहले. आई हैव गिवन 2 मेंस व्हाइल वर्किंग. तो आई मतलब इस चीज में मैं अपना कुछ योगदान नहीं बोलना चाहूंगी कि मैंने बहुत ज्यादा मैनेज कर लिया, बिकॉज ऑफिस का भी बहुत ज्यादा साथ रहा मुझे. एंड आई एम अवेयर दैट इट माइट नॉट बी द केस फॉर मेनी पीपल. तो अगेन मैं वही कहूंगी कि यू हैव टू कीप योर प्रायोरिटीज वेरी राइट, कि आपको करना क्या है. अगर आप वो नहीं होगा तो बहुत जल्दी सक इन हो जाओगे इस चीज में और ये नेगेटिव स्पाइरल में, क्यों मेरे पास तो टाइम नहीं है, बाकी सबके पास टाइम है, मैं ही नहीं पढ़ पा रही हूँ, बाकी सब पढ़ पा रहे हैं. तो जितना भी टाइम मिल रहा है उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है. और राइटिंग तो मस्ट है. मतलब मेंस आप क्लियर कर लोगे बट अच्छे मार्क्स से क्लियर नहीं कर पाओगे कभी भी अगर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो. मतलब ये राइटिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट नॉलेज. हो सकता है मतलब हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि एक बार एक अटेम्प्ट वाले बच्चा जो कि फर्स्ट आ जाता है उसकी नॉलेज ज्यादा है जो 6 बार अटेम्प्ट दे चुका है. इट इज नॉट पॉसिबल. तो कुछ तो वो एक बार अटेम्प्ट में जो फर्स्ट ला रहा है वो कुछ तो सही कर रहा है ना. इट्स नॉट अबाउट नॉलेज. ये तो बहुत क्लियर है कि इट इज नॉट अबाउट नॉलेज. वो कुछ आंसर राइटिंग में सही कर रहे हैं. तो यू हैव टू फिगर आउट दैट सही वो आंसर राइटिंग में एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है और क्या मैं नहीं कर रहा हूँ. वो प्रैक्टिस से ही आएगा. वो प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा. अब कितना ही पढ़ लो. और राइटिंग की स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर लिटरली रेसिंग अगेंस्ट टाइम. मतलब जिस दिन आप मेंस लिख के खत्म होते हैं योर हैंड कुड बी पुट इनटू अ कास्ट. मतलब प्रैक्टिस की सिचुएशन तक पहुंच जाता है आपका हाथ कि इतना ज्यादा लिखना पड़ता है. तो वो प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है. यू हैव टू बी इंड्योरेंस और स्टैमिना भी लाना पड़ेगा, नॉट जस्ट राइटिंग की टेक्निक या राइट. क्योंकि अगर क्वेश्चंस छूट रहे हैं और आपको आता है तो वो भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है मेरे हिसाब से, कि आता है तब भी छूट रहा है बिकॉज आपकी स्पीड नहीं अप टू डेट है. तो वो भी लिखने से ही आएगा. वो लिखे बिना नहीं आएगी. वो स्पीड आप अटेन नहीं कर पाओगे. तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग. You just mentioned that you used to get some leave before the mains, right? So is it mandatory to have these long breaks before the prelims or the mains? तो प्रीलिम्स आई थिंक मैनेज हो जाता है. वो भी अलग अलग सबकी स्ट्रेंथ्स रहती है. जैसे मेरा प्री है मेरी स्ट्रेंथ, तो मुझे प्री से पहले उतना नहीं लगता है कि मेरे को छुट्टी लेने की जरूरत है. बट मेंस हैव ऑलवेज बीन माय डाउनफॉल. तो मेरे को मेंस से पहले हमेशा लगता है कि एटलीस्ट मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए. बट वही डिफरेंट रहता है. आई नो पीपल जो कि एक बार प्री क्लियर कर लेते हैं तो सीधे इंटरव्यू कॉल लेके आते हैं. तो अपना अपना वो आपकी क्या स्ट्रेंथ है तो वो देखना पड़ेगा. कि अगर आपकी मेन स्ट्रेंथ है तो हो भी सकता है आपको ईओएल की जरूरत ना पड़े. और हर किसी की लग्जरी भी नहीं है आई थिंक कि वो ईओएल ले सके. सबका वर्क एनवायरनमेंट अलग है, सबकी वर्किंग कंडीशंस अलग है. तो हो भी सकता है कि इतनी लग्जरी भी ना हो कितने दिन की छुट्टी ले पाए. बट जितने दिन की भी मिल पाती है आई थिंक ले लेनी चाहिए. 5 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, जितने दिन की मिल रही है एक बार एग्जाम से पहले ले लो. जरूरी है. यू आर एंटरिंग फ्रॉम अ वर्किंग कंडीशन टू एन एग्जामिनेशन कंडीशन. तो वो आपको बीच में ब्रेक भी चाहिए क्योंकि यू हैव टू मेंटली रीसेट होना है आपको. कि फ्रॉम सिटिंग 9 to 5 ऑन अ डेस्क इन एन ऑफिस टू सिटिंग 9 to 5 इन एन एग्जामिनेशन सेंटर राइटिंग, कि बस लिखे जा रहे. तो वो मेंटल ब्रेक भी बहुत जरूरी है. वो एक दिन में नहीं आएगा. एटलीस्ट आपको 7-8 दिन चाहिए रहेंगे वो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए. और इस बार तो जैसे नॉर्थ इंडियंस के लिए तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है क्योंकि जनवरी में पेपर है. तो सर्दी में लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है इस बार. नॉट जस्ट लिखने की प्रैक्टिस. नॉर्थ इंडियंस को सर्दी में लिखने की प्रैक्टिस करनी है. तो ये लॉजिस्टिकल भी आपको देखना पड़ेगा. लॉजिस्टिकली भी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट इंड्योरेंस की बात भी बहुत ज्यादा है. मतलब नॉलेज और राइटिंग स्किल्स आप ले भी लो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू इंड्योर योर सेल्फ फॉर दोस 3 hours और उसमें पूरा लिख नहीं पा रहे हो तब तक, तो इट्स वो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है. अगर वो 3 घंटे में आप ढंग से नहीं लिख पा रहे हो, पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, देन योर 3-4 months प्रिपरेशन हैज बीन फॉर नथिंग. तो वो इंड्योरेंस भी बहुत जरूरी है डेवलप करना. वो भी एक ऐसा ब्रेक इसके लिए भी जरूरी है कि वो थोड़ा डेवलप हो. Are you able to hear? Renu, are you there?
Now you have talked about a few personality traits like endurance, etc. So और कौन से चाहिए मतलब if you want to clear this examination, which type of personality traits the aspirant should try to imbibe on themselves? सर सबसे मेजर तो मुझे लगता है परसिवियरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि गिव अप नहीं करना है, मतलब 6 साल तो आपको मिनिमम मान के ही चलना है, बिकॉज एज फेटलिस्ट अगेन एज इट साउंड्स हो भी सकता है कि आपका छठे अटेम्प्ट में जाके हो रहा हो। एंड वो परसिवियर मैंने, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद हिम्मत हार जाते हैं और छोड़ देते हैं। सम पीपल टर्न आउट गुड, कुछ लोग मतलब प्राइवेट में जाके दे रियलाइज कि हम तो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे थे अपने यूपीएससी में, तो गुड ऑन देम। बट हो भी सकता है कि दिस इज योर डेस्टिनी मे बी, और अगर आप उसमें ट्राई ही नहीं करोगे, कोशिश ही नहीं करोगे, यू नॉट विलिंग टू परसिवियर, तो लाइक एनी अदर गोल इट इज अबाउट परसिवियरेंस। हम लोग को सिर्फ वो दिखता है कि सक्सेस दिखती है, वी डोंट सी लाइक हम ये नहीं देखते कि माइकल फेल्प्स बचपन से स्विमिंग कर रहे हैं, हमको बस उसके गोल्ड मेडल्स दिखते हैं। तो परसिवियरेंस बहुत जरूरी है। ये सक्सेस के चैप्टर से पहले बहुत सारे चैप्टर्स आने हैं, तो परसिवियरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है। दूसरा कि पॉजिटिविटी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत सारी चीजें, देयर टू मेनी बॉल्स इन द एयर। आप काम कर रहे हो, आप यू हैव फ्रेंड्स आल्सो, यू हैव पेरेंट्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, आपको घर के काम भी, हाउस होल्ड चोर्स भी करने पड़ सकते हैं। तो उसके बावजूद फिर अगर आप उसमें फिर क्रिबिंग में टाइम वेस्ट कर दे रहे हो कि अरे नहीं सब लोग के पास टाइम है, मेरे पास ही टाइम नहीं है, तो यू जस्ट वेस्टिंग अनदर 20-30 मिनट्स जो आप पढ़ाई में लगा सकते थे। तो वो पॉजिटिव मेंटालिटी भी रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आईक्यू तो इट्स लाइक लेवलिंग ग्राउंड है यूपीएससी। द मोर यू वर्क हार्ड, आपका आईक्यू ईक्यू सब नलिफाई हो जाता है जितना आप हार्ड वर्क करते हो। आई नो पीपल जो अपने कॉलेज के टाइम में जीनियसेस हुआ करते थे, नाउ दे स्ट्रगलिंग टू इवन गेट इनटू द लिस्ट। आई नो सच पीपल आल्सो जो कि मैथ्स के ओलंपियाड वगैरह हुआ करते थे और अभी लिस्ट में भी नहीं आ पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली अबाउट हार्ड वर्क, और आप कितना ज्यादा इसको प्रायोरिटी मान के चल रहे हो कि मतलब कि यही करना है यही करना है, तो वो आपको वो रखना है हमेशा। ये कोट वायरल होना चाहिए कि हार्ड वर्क ईक्यू आईक्यू सब लेवल कर देता है। इट्स एन हम्बलिंग एक्सपीरियंस सर। मतलब मैंने अपने आईआईटी के फ्रेंड्स को प्री में फेल होते थे, इट्स सच एन हम्बलिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज दीज आर दोज पीपल जो स्कूल में टॉपर हुआ करते थे, जो यूपीएस जो आईआईटी में जेई में टॉपर्स हैं, जो अपने आईआईटी के समय में 8 पॉइंटर्स 9 पॉइंटर्स हैं, एंड यूपीएससी में धराशायी हो जाते हैं। इट इज सच एन हम्बलिंग एक्सपीरियंस। मतलब इंसान को धरातल पे ला देता है ये एग्जाम, लाइक असली औकात दिखा देता है टू बी क्रैश। मतलब आपको अपना एक्चुअल लेवल समझ में आ जाएगा कि आप जो आप जी रहे थे वो कुछ भी नहीं है। तो इट इज सच ए हम्बलिंग एग्जाम। मतलब इवन मी कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट आई डू कि आईआईटी से कर लिया, ये चीज बहुत ज्यादा होती है। हमारे आईआईटी होती है, हम तो आईआईटी है, हम तो मतलब इंटरव्यू में जाएंगे तो हम तो फोड़ देंगे। हम तो इंटरव्यू में तो हमारी मतलब रेज्यूमे देख के दिल भी लाइक डैफ देख के दिल भी लाइक हाँ आ जाओ तुम तो आ जाओ। नो नो, देयर इज गोइंग टू बी सम किड फ्रॉम अ लोकल कॉलेज जो आपसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, आपका लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा, और अपना फिर वो आप आईआईटी वाले टैग के ऊपर सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। सो इट्स सच अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। During your graduation, you have been you're talking about your IIT days, etc. During your graduation, you have been a member of NSS, right? You participated in the NSS activities. So that kind of extracurricular activities during your graduation help at any stage in this exam? बहुत हद तक करता है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है एक्चुअली। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एनएसएस के बियॉन्ड भी अगर बात करूं तो लाइक लिविंग इन पुणे फॉर 2 years, मैं खुद ड्राइव करके आई वेंट टू अजंता एंड अलोरा एंड बीइंग अ हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट, दैट वाज सच एन एक्सपीरियंस फॉर मी कि अब मैं अगर कोई मुझसे हिस्ट्री का मैं क्वेश्चन लिखती हूँ तो मैं विजुअली देख के आई हूँ मैं उस चीज को, तो मैं आई कैन रिलेट बेटर टू इट, आई कैन राइट अ बेटर आंसर, आई कैन एक्सप्लेन इट अ बेटर वे कि मैंने उपिंदर सिंह से जो पढ़ा वर्सेस जो मैंने देखा, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्चुअली आपका माइंड एक्सपैंड करेगी, क्योंकि
अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत अथाह है सिलेबस, आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना एक्सपीरियंस कर पा रहे हो और वो एक्सपीरियंस आपका कितना मेंस में या कितना इंटरव्यू में ट्रांसलेट हो पा रहा है। तो वो बहुत बहुत जैसे जीएस में भी मैं जैसे जीएस का भी देखती हूँ कि व्हेन यू हैव दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अंडर योर बेल्ट, आपको वर्क का एक्सपीरियंस है, आपने ये सब सोशल एक्टिविटीज कर रखी है, तो एक को भी एक बहुत बहुत ही अलग लेंस से देख पाते हो आप जीएस स्कोर के पेपर को। आप वो आइडियलिस्टिक तरीके से नहीं देख रहे हो, आपको पता है कि अच्छा आपने ग्राउंड में जाके काम करा हुआ है, आपको पता है, तो आप वो केस स्टडी को बहुत अलग तरीके से अप्रोच करोगे इंस्टेड ऑफ इट बीइंग बुकिश, क्योंकि वो बुकिश नॉलेज देख भी नहीं रहे हैं जीएस फोर में। तो वो आई थिंक बहुत ज्यादा हेल्प करता है कहीं ना कहीं। इफ यू अलाउ दीज एक्सपीरियंसेस टू एक्सपैंड योर माइंड, तो बहुत हेल्प करेगा मेरे हिसाब से। और इंटरव्यू में तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हो एंड दीज थिंग्स डू मेक योर पर्सनैलिटी, तो आई थिंक हेल्प करता है बहुत ज्यादा। In UPSC, a lot of times the opinions are asked, right? And that is always a big challenge for the students to create their opinions. So, how you tackle that challenge? तो ओपिनियन का मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड ओपिनियन, बिकॉज अगेन यू आर वर्किंग एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। आप वहाँ पे एज अ सोशल वर्कर नहीं जा रहे हो दैट यू हैव टू हैव वेरी रेडिकल ओपिनियन। तो आपको बहुत बैलेंस्ड ओपिनियन, बहुत रियलिस्टिक ओपिनियन रखना है कि आप यू पॉलिसीज यू आर देयर टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज। तो अगर आपको बहुत ज्यादा लेफ्ट या राइट व्यू है दोनों किसी भी पॉलिसी पे, you will not be able to do your work properly. So I think okay, that's it. That way you will evolve the balanced sort of opinion. You have to keep that always. Balance होना बहुत जरूरी है। हाँ। You are having these peculiar hobbies like weight training and driving cars, right? So would you like to share कि exactly है क्या ये? So actually मेरे को एक तो कमिंग फ्रॉम दी रूरल टाइप सेमी अर्बन बैकग्राउंड और उससे आती हूँ मैं, और स्पेशली हरियाणा इज नोटोरियस फॉर गर्ल चाइल्ड के साथ जो भी होता है। तो आई हैव ऑलवेज मतलब आयरॉनिकली समहाउ आई हैव बीन पायनियर इन दीज थिंग्स अराउंड माई सेल्फ कि अच्छा वर्कआउट करना ही, अगर आप इफ यू आर गोइंग इन टू जिम एंड वर्किंग आउट, तो वही मतलब इतना बड़ी बात हो जाती है, कितनी मतलब इतनी मेजर बात हो जाती है, वो लड़की इज वर्किंग आउट। तो मतलब मेरे लिए टूल भी है बहुत हद तक प्रिपरेशन के लिए। मैं प्रोडक्टिव तभी रह पाती हूँ व्हेन आई एम फिजिकली एक्टिव, नहीं तो मैं प्रोडक्टिव नहीं रह पाती। क्योंकि एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि सर अगेन कमिंग टू द पॉइंट दैट वी रैप आवर आइडेंटिटी सो मच अराउंड दिस एग्जाम कि 5-6 साल तक आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो। तो व्हेन यू आर नॉट यूपीएससी एस्पिरेंट एनी मोर, चाहे किसी भी कारण से, चाहे आपका सिलेक्शन हो गया, चाहे आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए, किसी भी कारण से व्हेन यू आर नॉट यूपीएससी एस्पिरेंट एनी मोर, तो इतना भयंकर आइडेंटिटी क्राइसिस आएगा ना कि आप मतलब यू कुड गो इनटू डिप्रेशन, आपको इतना भयंकर आइडेंटिटी क्राइसिस आएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है टू हैव दीज थिंग्स आउटसाइड ऑफ योर आइडेंटिटी एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, कुछ हॉबी बनाना। तो मेरे लिए वही हॉबी है, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है और मेरे को सिटीज एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, नॉट लाइक टूरिस्ट की तरह एक्सप्लोर करना नहीं अच्छा लगता, मुझे ट्रैवलर की तरह एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। तो आई लाइक गेटिंग इन टू रोड्स, और मैं ऑलमोस्ट अब तो काफी सारी सिटीज में गाड़ी चला चुकी हूँ, बैंगलोर में, पुणे में, दिल्ली में, जयपुर में, पौंडीचेरी में, बहुत सारी जगह अलग अलग गाड़ी। और आपको सिटी की वाइब समझ में आती है व्हेन यू गेट डाउन ऑन द रोड, एंड आई लाइक दैट कि सिटी का। और वही कमिंग बैक टू दैट एग्जाम थिंग ऑल्सो, नाउ दैट आई हैव सीन पौंडीचेरी, नाउ दैट आई हैव सीन अरिकमेडू, I can write a better answer about Arikamedu and Roman Empire and Roman trade with India. So वो ये चीजें आपको enrich करेंगी when you have a life outside of UPSC and UPSC aspirant. लाइफ आप ये चीज आपको वापस many bound multiple तरीके से आपको यूपीएससी में भी हेल्प करेगा। तो अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट कि गिल्टी नहीं होना है ये सब काम करने के लिए। इफ यू आर टेकिंग आउट 1 hour फॉर योर फिजिकल हेल्थ, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ भी अच्छी कर रहे हो कहीं ना कहीं, जिससे आपको प्रोडक्टिव होगे। और कुछ और अगर हॉबी है, पेंटिंग है या गार्डनिंग है या कुछ भी है, अगर आप उसमें 1-आधा घंटा लगा रहे हो पूरे दिन में, एंड यू गेट प्रोडक्टिव फॉर दोस अदर 4-5 hours दैट यू आर गोइंग टू स्टडी,
So that is nothing to be guilty about. ये मुझे लगता है बहुत सारे एस्पिरेंट से गलती करते हैं कि हॉबी नहीं बनाते हैं, सोचते कि टाइम वेस्ट होगा. नो, टाइम वेस्ट नहीं होगा. व्हाट यू विल बी डूइंग इज कि आप 5 घंटे अगर पढ़ रहे थे और अब हॉबी के कारण 4 घंटे पढ़ो, तो वो 4 घंटे आपके और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे. तो आप हो भी सकता हो 5 घंटे में आपका 10 बार जो फोकस टूट रहा था वो कम होकर 4 बार हो जाएगा वो फोकस टूटना. तो गिल्टी नहीं होना है ये सब हॉबीज को लेके. और मतलब ये मेरी तो पर्सनल प्रेफरेंस है इस कारण से कि मुझे वेट ट्रेनिंग पसंद है, मुझे जिम में वर्कआउट करना अच्छा लगता है. तो इट मेक्स मी फील हैप्पी, इट मेक्स मी फील मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग. और ड्राइविंग इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे सिटीज एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है. तो इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम फॉर एनीवन, बट इट कम्स डाउन टू हैविंग अ बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट आल्सो. तो इस कारण से मतलब मैं तो सबको ही बोलूंगी कि कुछ ना कुछ ऐसा करो. और बीइंग लड़की तो और ज्यादा बोलूंगी कि ऐसी थोड़ी मतलब नॉन स्टीरियोटाइपिकल हरकतें भी करनी चाहिए. मतलब बहुत नॉन स्टीरियोटाइपिकल हरकत है कि मतलब कोई लड़की जिम कर रही है या कोई लड़की ड्राइव कर रही है. बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट कि ये स्टीरियोटाइपिकल क्यों है ये चीजें. मतलब इट शुड बी नॉर्मल. बीइंग फिजिकली एंड मेंटली active, and it should be normal. Having physical mobility, going places, going to your office should be normal. तो peculiar नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. मतलब I find it a little problematic कि peculiar क्यों है. मतलब मैं घर से ऑफिस जाना चाहती हूँ गाड़ी चला के. Why is it peculiar? Anything else you want to share to your listeners? एज अ वर्किंग इंडिविजुअल मैंने मतलब मैं जितना दूसरों का एक्सपीरियंस सुनती हूँ मुझे ना कहीं लगता है कि थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है. व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर शेयरिंग देयर ओन एक्सपीरियंस कि अच्छा मैं कम्यूट करते हुए पढ़ता था. तो एग्जांपल ले रहे हैं. बट यू कैन नॉट गिव दैट आइडिया टू समवन हु इज कम्यूटिंग फ्रॉम मुंबई लोकल. वहां आप जिंदा ऑफिस पहुंच जा रहे हो, बड़ी बात है. उसमें आप ये भी बोल दो बच्चे को कि आप पढ़ लो उस टाइम पे. दैट इज टू क्रूअल. तो मेरे एक्सपीरियंसेस या किसी और के एक्सपीरियंसेस से ये नहीं इन्फर करना है किसी को भी कि अच्छा मतलब कि मेरी सिचुएशन इसके जैसी नहीं है तो मैं नहीं कर सकता. सिंस आई कैन नॉट स्टडी व्हाइल आई एम कम्यूटिंग तो मैं नहीं कर सकता कि मेरे से नहीं होगा. यू हैव टू वर्क. आपको अपना जॉब भी करना है बट यू हैव टू वर्क योर प्रिपरेशन अराउंड दैट जॉब. कि अच्छा 1 घंटा पहले अगर उठ पाते हो और वो पढ़ पाते हो तो वो कर लो. रात में 1 घंटा लेट सो के पढ़ पाते हो तो वो कर लो. लंच आवर एक घंटे के लंच आवर में 10 मिनट में खाना खा के 40 मिनट पढ़ सकते हो तो वो कर लो. 50 मिनट पढ़ सकते हो तो वो कर लो. तो इस तरह से यू हैव टू वर्क इट अराउंड योर स्पेसिफिक थिंग. मेरे एक्सपीरियंस से आप सिर्फ फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड इंस्पिरेशनल ले सकते हो सिर्फ कि अच्छा मैंने इस तरह से किया. मतलब इंस्पिरेशनल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी गर्ल फ्रॉम अ वेरी ऑर्डिनरी प्लेस. तो मेरे को ये लगता है कि आप बस कि किसी के एक्सपीरियंस से मोटिवेशन लो. बस ये मत करो कि अच्छा उसके पास ये सुविधाएं थी या उसके पास ये, क्योंकि बहुत हद तक हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत एलिटिस्ट भी हो जाते हैं. बिकॉज आई हैड द प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ कार, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ रेंटिंग माय ओन हाउस. तो मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं होता था कि मेरे पास इतना माय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेव मी द रूम कि मैं खुद का एक 1 BHK ले सकती हूँ. वो हो सकता है कि सबके पास वो नहीं हो भी सकता है दैट यू हैव टू शेयर योर रूम विद समवन एल्स इन सिटी लाइक मुंबई जहाँ इतना ज्यादा वो है रेंट की प्रॉब्लम है, जहाँ बैंगलोर जहाँ पे आपको हो सकता है. तो यू हैव इसके बावजूद करना योरसेल्फ. हो सकता है कि मुझसे भी ज्यादा कोई प्रिविलेज्ड पोजीशन में हो और मुझसे कम प्रिविलेज्ड पोजीशन में भी कोई हो सकता है. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना गोल याद रखना है कि आप क्यों कर रहे हो ये चीज. और वही वो अर्जुन की वो मछली की आग की तरह बस उस पर फोकस्ड रहना है कि 1 घंटा पहले उठे 1 घंटा बाद में उठे, जो करना है करो. बट करना है तो यू हैव टू वर्क अराउंड योर शेड्यूल. तो वो चीज हमेशा याद रखनी है. तो दैट इज द फाइनल message that I want to give to the listeners. If you're working, नहीं working हो तो फिर तो पूरा ही दिन आपका आराम से पढ़ो. It was really fascinating to listen to your annual talk with you, and best of luck for all your future endeavors. And I hope that you will keep laughing like this. Thank you really. Thank you.